مارکیٹوں کے پرانے اوقات کار بحال، عید پر دی گئی 24 گھنٹے کاروبار کی اجازت ختم کر دی گئی، دکانیں اور مارکیٹیں رات 10 بجے بند ہوں گی۔ پنجاب حکومت نے کاروبار کے اوقات کار میں دی گئی نرمی ختم کر دی، کاروباری سرگرمیاں اب معمول کے اوقات کے مطابق جاری رہیں گی۔ عید الفطر کے بعد پنجاب بھر میں مارکیٹس بند کرنے کے اوقات کار بحال کر دیے گئے، دکانیں رات 10 بجے بند ہو جائیں گی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے عید الفطر کے موقع پر دکانیں بند کرنے کے اوقات کار میں نرمی کی گئی تھی، دکانیں 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دی گئی تھی۔ عید الفطر کے بعد پنجاب حکومت نے اوقات کار میں دی گئی رعایت واپس لے لی، دکانیں پرانے اوقات کار کے مطابق بند ہو جائیں گی۔ کفایت جاری کے لیے وزیراعظم کا ایک اور اہم فیصلہ، لگژری گاڑیوں کے بعد سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی عائد، پابندی کا اطلاق فی الفور ہوگا، فیصلے کی نگرانی کے لیے مؤثر نظام وضع کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت، بولے کسی گاڑی میں ہائی آکٹین لازم ہے تو استعمال کرنے والا خود ادائیگی کرے گا۔ کفایت شعاری کے لیے وزیر اعظم کا ایک اور اہم فیصلہ، لگژری گاڑیوں کے بعد سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی عائد، سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی کا اطلاق فی الفور ہوگا۔ کسی محکمے کی گاڑی میں ہائی آکٹین لازم ہے تو استعمال کرنے والا خود ادائیگی کرے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سرکاری خرچ پر ہائی آکٹین کے استعمال پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ تمام وفاقی محکمے، اتھارٹیز، ذیلی ادارے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے سرکاری گاڑیوں کے ایندھن پر 50% کٹوتی کا اطلاق پہلے ہو چکا ہے۔ بچت پروگرام کے تحت 60% سرکاری گاڑیوں کو گراؤنڈ بھی کیا جا چکا ہے۔ اور یہاں ہم کو بتائیں کہ سونے کی قیمتوں میں 32,000 روپے کی بڑی کمی، خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 4,80,000 روپے کا ہو گیا، 22 کیرات فی تولہ سونا 4,40,000 روپے کا ہو گیا، 21 کیرات فی تولہ سونا 4,20,000 روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمتوں میں 32,000 روپے کی بڑی کمی، خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 4,80,000 روپے کا ہو گیا، جبکہ 22 کیرات فی تولہ سونا 4,40,000 روپے کا ہو گیا، 21 کیرات فی تولہ سونا 4,20,000 روپے کا ہو گیا۔ بادلوں کا ایک اور سپیل برسنے کے لیے تیار، کل سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ لاہور میں 25 اور 26 مارچ کو بارش کی پیش گوئی، 28 سے 30 مارچ کے دوران بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ بادلوں کا ایک اور سپیل برسنے کے لیے تیار، کل سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، لاہور میں 25 اور 26 مارچ کو بارش متوقع ہے، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 28 سے 30 مارچ کے دوران بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 مارچ سے ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، بلائی علاقوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور ژالہ باری ہوگی۔ 25 سے 30 مارچ کے دوران متعدد شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے، کیونکہ تیز ہواؤں اور آندھی کے باعث کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان کا خدشہ ہے۔ بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں، کسانوں کو فصلوں کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے مزار پر گارڈ تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے علامہ اقبال کے مزار پر گارڈ تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی، پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے سنبھالے اعزازی گارڈ کے فرائض۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل محمد شاہد افضال، آفیسر کمانڈنگ PAF ایئر مین اکیڈمی کورنگی کریک تھے، جنہوں نے سبکدوش ہونے والے پنجاب رینجرز کے دستے کو خراج تحسین پیش کیا اور گارڈز کا معائنہ کیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی اور مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ مہمان خصوصی نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ فاران یامین، سٹی 42۔ ٹریفک کا بڑھتا ہوا دباؤ، سگنل فری روڈ پر ٹریفک چلانا مشکل ہو گیا، کرتبہ چوک پر واپس فیروز پور روڈ مڑنے والوں کے لیے سگنل فری پروٹیکٹڈ یو ٹرن بند۔ میٹرو بس منصوبے کی تعمیر کے دوران فیروز پور روڈ پر پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے گئے تھے، کئی سال بعد LDA ٹیپا ٹریفک پولیس نے بڑے بلاکس رکھ کر یو ٹرن کو بند کر دیا۔ ٹریفک کے بڑھتے دباؤ کے باعث سگنل فری روڈ پر ٹریفک چلانا مشکل ہو گیا۔ کرتبہ چوک سے واپس فیروز پور روڈ مڑنے والوں کے لیے سگنل فری پروٹیکٹڈ یو ٹرن بند کر دیا گیا۔ میٹرو بس منصوبے کے تعمیر کے دوران فیروز پور روڈ پر پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے گئے تھے۔ پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بننے سے فیروز پور روڈ سگنل فری، جبکہ ٹریفک کو آسانی ملی تھی۔ کئی سال بعد LDA ٹیپا ٹریفک پولیس نے بڑے بلاکس رکھ کر یو ٹرن کو بند کر دیا۔ فیروز پور روڈ پر آنے والی ٹریفک کو واپس یو ٹرن لینے کے بجائے لیٹن روڈ سے یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ لیٹن روڈ یو ٹرن پر پہلے ہی کوئنس روڈ
और जेल रोड जाने वालों का रश होता है। हुकाम ने यू टर्न बंद या सिग्नल फ्री रोड पर टेबल स्पीड ब्रेकर बनाकर ट्रैफिक स्लो करना शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने राना तनवीर को ईद की मुबारकबाद दी। राना तनवीर की हालिया सूरत हाल में मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात के ज़खायर पर ब्रीफिंग। मुल्क में ग़िज़ाई अशिया वाफर मकदार में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर ने खलीजी ममालिक को अशिया ख़ुरनोश की बरामदात पर पेशरफ़्त से आगाह किया। ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ बड़ी तादाद में पार्कों में आवाम का रश। बच्चे बड़े तमाम हंसते खेलते ईद का तीसरा दिन एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद इस वाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हर तरफ ईद का शोर, ईद की रौनकें अरूज पर हैं। हंसते मुस्कुराते चेहरे खुशियां बिखेरते दिखाई देते हैं। उछलते कूदते झूले झूलते बच्चों को देखकर वालिदैन की भी खुशी दीदनी है। आज थर्ड डे हमने कहा चलो बाहर जाके एंजॉय करते हैं, बच्चों को घुमा कर लाते हैं। मुझे तो बहुत मजा आया। अब तो शाम हो गई है, तीसरा दिन हो गया, दिल नहीं करता घर जाने को। दिल करता अभी तक 2-3 घंटे घूमते रहे। और इसके अलावा खाना पीने का भी बहुत मजा आया, एंजॉय किया है। बच्चों का कहना है कि ईद की खुशी अपनी जगह, लेकिन गुजर जाने का गम भी है, जबकि अभी कुछ तफरीह की ही नहीं। कोशिश है रात गए तक बाहर सैर तफरीह ही करेंगे। बहुत मजा आया है, अभी तो सही एंजॉय नहीं किया, अभी तो हम सही करेंगे। ईदी भी हमें बहुत ज़्यादा मिली है। अभी तो हम कह रहे हैं कि अभी हम रोस्ट वगैरह खाने जाएंगे, तो अभी तो कभी कोई झूले भी नहीं है इस बारी, तो अब हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हम जाएंगे घर। फेरी वाले और दीगर अशिया फरोश भी बच्चों की ईदी से खूब कमाई करते दिखाई देते हैं। ईद का त्यौहार यादगार रहे, यही वजह है कि फैमिलीज बड़ी तादाद में पार्कों का रुख करती हैं। कैमरामैन राना अजीम के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। ईद का तीसरा रोज़ शहरियों ने फैमिलीज़ के हमरा आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। गुलबर्ग मेन मार्केट शहरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होने लगी, जबकि बच्चे मर्द ख़वातीन सब खुशगवार मौसम में आइसक्रीम से लुत्फ़ उठाने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ गुलबर्ग मेन मार्केट में, जहाँ पर आइसक्रीम खाने वालों की बड़ी तादाद जो है वो आज ईद के तीसरे रोज़ जो है वो उमड़ आई है। और सबका मकसद सिर्फ ये एक है कि इस मीठी खुशी को, इस मीठी ईद को मीठी खुशियों के साथ यानी मीठी आइसक्रीम के साथ जो है वो अलविदा कहें और इसको इस कदर खूबसूरत तरीके से बनाएं कि यादें जो है वो हमेशा यादों का हिस्सा बन जाए और हमेशा के लिए जो है वो याद रह जाए। इस वक्त हमारे साथ एक क्यूट सी फैमिली मौजूद है, उससे जानते हैं कि आइसक्रीम जो है वो उन्होंने कितनी खा ली है और अभी कितनी जो है वो मजीद बाकी रह गई है खाने वाली। मुझे बताएं कि आइसक्रीम कितनी खाई है, कितना अच्छा लग रहा है और आइसक्रीम टेस्टी थी कि नहीं टेस्टी थी? आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी, बहुत मजा आया। ईद की कैसी वाइब्स हैं? ईद कैसी लगी, कैसी गुजरी ईद आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी हमारी। तो आप बताओ आपको कैसी लगी है ईद? ओवरऑल आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं, एक पूरा गेट टुगेदर होता है फैमिली के साथ, एक अच्छा माहौल बन जाता है। कितना एंजॉय किया उसको? बहुत एंजॉय किया इस ईद को, बहुत मजा आया ईद पे। इस मोमेंट्स के बारे में क्या कहोगी, क्या कहना चाहोगी इस लम्हे के बारे में जो अपनी फैमिली के साथ गुजारी हो आप? फैमिली का लम्हा गुजारा हुआ हमारे अच्छा होता है, ये तो खास होता है हमारे लिए, बहुत अच्छा गुजरा है। बिल्कुल बात है, ये खास लम्हा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आइसक्रीम आपने खत्म कर ली? हाँ जी। आपको सबसे छोटे वाला कब दिलवाया, क्यों? वैसे ही। हाँ तो जी। कैसी गुजरी ईद, कितनी ईद इकट्ठी होगी और घर वालों के साथ कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बचाए बच्चों के साथ आई हैं, फैमिली के साथ आई हैं, ओवरऑल फैमिली को खुश होता हुआ देख के, आइसक्रीम खाता हुआ देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। इस ईद के मौके पर लोगों को क्या पैगाम देंगी? बस यही खुश रहें, जितनी जिंदगी है उसे खुशी खुशी गुजारना चाहिए। जितनी भी खुशियां हैं उसको खुशी खुशी गुजारना चाहिए, आइसक्रीम खानी चाहिए, क्योंकि आइसक्रीम जो है बेशक सेहत के लिए ठंड में अच्छी नहीं होती, लेकिन इस मौके पे बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि आइसक्रीम खाने से मीठी ईद की खुशियां दुबाला हो जाती हैं और वो जो लम्हात फैमिली के साथ गुजारे होते हैं वो भी हमेशा के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। मीठी ईद पर खुशी का बेहतरीन इजहार। अंदरूनी लाहौर की मयारी मिठाई का तोहफा। तीसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ मिठाई की दुकानों का रुख किया और अपने प्यारों के लिए मीठा तोहफा खरीदा। ईद उल फितर की खुशियों को दोबाला करने के लिए शहरी अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब की तरफ मिठाई लेकर जाते हैं। शहरियों ने बर्फी, चमचम और गुलाब जामुन समेत मुख्तलिफ इकसाम की मिठाइयों का तोहफा खरीदा। आज ईद का तीसरा दिन था, मैंने सोचा कि घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए यहीं से लेके जाऊं। बर्फी, गुलाब जामुन पसंद है तो हम हर साल यहीं से लेते हैं। माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा म्यार है। आज ईद का तीसरा दिन है, हम ना रिश्तेदारों के घर जाना है और मिठाई लेके जाएंगे आज, और आज मंगनी भी है भाई की, ठीक है, उनके टोकरी वगैरह लेने आए हैं। ईद उल फितर मीठी ईद होती है, तो इसकी मीठी खुशियों को दुबाला करते हुए हम भी इधर मिठाई लेने आए थे। मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो हम आज जा रहे थे अपने रिश्तेदारों की तरफ,
तो यही सोचा कि यार मिठाई लेके जाया जाए। दुकानदार ने बताया कि ईद के तीसरे रोज शहरियों का बड़ा रश होता है। उनकी बादामों वाली बर्फी और चमचम की क्या बात है। हमारे पास स्पेशल बादामों वाली बर्फी है, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है और मिल्की पतीसा है, लड्डू मोतीचूर है हमारे पास, और जो हमारी कटाइयाँ हैं, ठीक है, गुलाब जामुन वगैरह है हमारे पास। शहरियों ने कहा कि मिठाई के बगैर ईद की खुशियां अधूरी हैं। सालों से अंदरून शहर की दुकानों से मिठाई खरीदते हैं। मयार और क्वालिटी बेहतरीन होती है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अबू बकर शेख। मुस्लिम लीग की रहनुमा लाला जवार की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की शिरकत, मेहमानों की रिवायती देसी नाश्ते से तवाज़ुन की गई। ईद मिलन पार्टी में हेल्थ रिपोर्टर्स ने खुसूसी शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी ज़ाहिर चौधरी, मोहम्मद इलियास, मियाँ नवीद, दानियाल उमर, सादिया मकसूद, सलमान चौधरी, बिलाल चौधरी, नोमान लियाकत, हसन हफीज़ और मोहसिन अलवी शरीक हुए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और सहाफ़ियों की देसी नाश्ते से तवाज़ुन की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि ऐसी महफिल का मकसद मिल बैठना होता है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कारकुनों पार्टी का कीमती असासा करार दिया। यही वजह है कि वो बेशतर वक्त कारकुनों के साथ ही गुजारते हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर लाला जब्बार की पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। यौम पाकिस्तान के मौके पर पुरानी अनारकली गोल्ड मार्केट में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के दफ्तर मुस्लिम लीग हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया। मरकज़ी मुस्लिम लीग के पुरानी अनारकली दफ्तर में इफ्तिताह के मौके पर कौमी यकजहती और अवामी खिदमत के अज़्म का इजहार किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुसबिल इकबाल हाशमी ने कहा कि 23 मार्च इत्तेहाद, कुर्बानी और एक मजबूत पाकिस्तान की तामीर का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि ज़ाती इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर अवाम के मसाइल के हल और मुल्की तरक्की के लिए मुश्तरका जद्दोजहद नागुज़ीर है। तकरीब में चौधरी माज इश्तियाक, अहमद फराज वटू, लाला बुजुर्ग गफारी और मोहम्मद आजम समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर महकमे सियाहत की जानिब से शहरियों के लिए एक मुनफरिद तोहफा आर्मी म्यूजियम के नए टूर का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया, जहाँ तारीख और तफरीह एक साथ मुयस्सर होगी। महकमे सियाहत की जानिब से शुरू किए गए टूर का इफ्तिताह MD-TDCP आसिम रजा ने किया। तकरीब के दौरान यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई भी की गई। आर्मी म्यूजियम का ये टूर सियाहों के लिए एक मुनफरिद और मालूमाती तजुर्बा साबित होगा। आसिम रजा कहते हैं कि टूर के जरिए शुरका वॉर हिस्ट्री और कौमी खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाही हासिल कर सकेंगे। आर्मी म्यूजियम टूर ले जाने के लिए हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश कामयाब हुई। उसमें बहुत बड़ा किरदार आर्मी का है, आर्मी म्यूज़ियम की टॉप मैनेजमेंट का है, क्योंकि बहुत सारे इसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। आर्मी म्यूज़ियम टूरिस्ट के लिए इस तरह अच्छा है कि वहाँ पे जाके एक पूरी पाकिस्तान की जो वॉर हिस्ट्री है वो बच्चों को, टूरिस्ट को देखने को मिलती है। हमारी पूरी किस किस तरह की वेपन्स हैं, किस किस तरह के वहाँ पे जहाज मुख्तलिफ तरह के खड़े किए हुए। सियाहों ने आर्मी म्यूजियम का टूर शुरू करने को खुशाइंद करार दिया। बच्चों के लिए तो अच्छा है सारा ना, क्योंकि हम लोग तो चलो पहले देखा हुआ है, लेकिन जो बच्चे अब जो यंग हैं उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी, वो ज़रा ज़्यादा फिर उनको अपने जो है ना अटैच हो जाते हैं। ये चीज़ें देखेंगे तो उनको ये अच्छा लगेगा। ये एक नया इवेंट है, सारों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारी यूथ के लिए और सबके लिए। तो ऐसा होना चाहिए कि सब लोग मिलके एक जगह पे जाएं और एक यूनाइटेड हो सारे एक जगह पे, और अच्छा लग रहा है। टूर हफ्ते के 7 दिन जारी रहेगा। आर्मी म्यूजियम टूर के साथ साथ सियाहों को फोर्ट्रेस स्टेडियम की सैर भी करवाई जाएगी। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।